मुझे करनी भी है या नहीं करनी है। वेरी इंपॉर्टेंट, सारी बातें मेरी याद होती है, तो यू डोंट नीड एनी। हेलो यूट्यूबीज, सो वेलकम बैक टू माई चैनल। जो लोग भी नए आए हैं वो कृपया करके प्लीज़ पॉपकॉर्न और पेन लेके बैठ जाओ, और जो भी लोग पुराने हैं मेरे चैनल पे, आई नो आप लोगों को सारी बातें मेरी याद होती है, तो यू डोंट नीड एनीथिंग, ओके। सो या लॉन्ग फॉर्म वीडियो काफ़ी टाइम के बाद मैं पोस्ट कर रही हूँ, आई नो दैट, एंड ओके आई डोंट हैव एनीथिंग टू से बिकॉज आई वॉज वेरी कन्फ्यूज लिटरली कि मुझे किस टाइप के टॉपिक पे बात करनी है एंड मुझे करनी भी है या नहीं करनी है। सो टुडेज टॉपिक इज़ मूड बोर्ड। नो 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 नो, मैं ट्यूटोरियल नहीं दूंगी इसको बनाने का। आई नो सभी क्यूटीज़ को ये बनाना आता है। सो आई एम गोइंग टू गिव माई पर्सनल ओपिनियन ऑन दिस एज इट इफ actually works or it's just a teenager thing which people just following on the internet, and according to the research also, does mood board actually works? In simple words, I would say that people who rely on manifestation and not take any actions are unlikely to achieve their goals. It's just what it is. But is it new? No, it's not. I was in 8th standard, but my sister told me about this. Like, मैं एक स्टोरी बताती हूँ। हम सब सिबलिंग्स जो थे, तो गर्मियों की छुट्टियों में हम सब लोग बैठे हुए थे, एंड हमारी जो बड़ी बहन है उन्होंने हमको एक वीडियो दिखाई जिसमें द सीक्रेट बुक का जो पूरा जो भी सारी चीज़ें उसमें थी वो सब बताई गई थी, कैसे आप अपनी फेवरेट चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें, विजुअलाइजेशन और उसके बाद मूड बोर्ड एंड ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन थी, एंड जितने भी मिलेनियल्स होंगे और जितने भी वो टाइम की दीदी भैया लोग होंगे उनको पता होगा कि ये चीज़ कहाँ से आई हुई है, ये मूड बोर्ड एंड ये सब कहाँ से निकला हुआ है, ये सब उनको अच्छे से पता है। सो उन्होंने मुझे ये दिखाई, एंड एट दैट टाइम आई यूज्ड टू थिंक कि यार ये सच में ऐसा होता भी है कि नहीं होता है। बट स्लोली मैंने उस चीज़ को अपने लाइफ में अडेप्ट करना शुरू किया, एंड आई वॉज सरप्राइज्ड। लाइक ऑब्वियसली आई विल नॉट से कि बस मैं ऐसे आंखें बंद करके ओके फ़ोटो लगा के इसको देखते जाएंगे हम और हो जाएगी वो चीज़। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, इट डजंट वर्क लाइक दैट। लाइक यू हैव टू हैव अ प्लान, literally you have to have a plan. You just cannot stick something and call it a mood board and just sit around it and just stare it like that and the next day say okay I want this and I'm just making a mood board and this will happen to me. No, it doesn't work like that. You have to have a proper plan. You have to think clear of your goals and you have to work accordingly. And yes, I do believe in this, but I noticed something in that video of the book Secret, which was the people who were saying that yes, we manifested this, we did this, were truly very disciplined in their lives, and they were literally going according to a plan, like where they want to be in life, what they want to do. Like they have a clear vision, they have a clear goal, clear vision of themselves, what they are achieving and what they have to do in life in order to be there. So it's very important to have a clear goal, some clear intentions of what you want to be and why you want to be. There are some things that need to be clear in your mind, because subconsciously you are literally thinking that okay, I want to achieve this, but what if it will not happen like in this way or that way. So for that, to stop that particular thinking in your mind, you have to be very clear of your goals. You have to make a plan, like literally a valid plan, not like just okay, I want to be this, I'll do this thing and then I'll be here in like 1 month or something. No, it doesn't work like that. You have to be very consistent, you have to work accordingly, and that is what I noticed in those people. And now we are going to talk about some of the things which literally slows down the effect of your mood board. Self-doubt.
सेल्फ डाउट. Obviously यार, it's very 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 important to have full faith in yourself, what you're doing, and उसके बाद आप बहुत ही अच्छा फील करोगे. भूलने के लिए कोई नहीं कह रहा है क्योंकि लगा दो भूल जाओ, एंड ऑब्वियसली आपको अपने काम में आप बिज़ी रहोगे कभी ना कभी. बट अगर आप अपने फ़ोन में ऐसा वॉलपेपर भी लगा देते हो अपने विजन बोर्ड का, या फिर जो भी, अगर आप छोटा सा वॉलपेपर भी लगा देते हो और आप जब देखते हो उसको, एंड आपको एक अच्छी एनर्जी फील होती है, बहुत ही मोटिवेशनल आपको फील होता है, एंड आपको फिर याद आ जाता है ओके आई नीड टू टेक दिस स्टेप्स टू बी हियर. सो आप बहुत अच्छे से, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करते हो, एंड आपको बहुत ही अच्छा फील होता है पूरे दिन में कि, और आपको एक बहुत अलग सी फीलिंग आती है जब आप सोने जाते हो कि ओके मैंने ये सब चीज़ें करने के लिए ये सारे स्टेप्स लिए जो मुझे लेने चाहिए थे शायद. एंड बस सोने से पहले विजुअलाइज करके सो कि ओके ये सारी चीज़ें हो गई हैं, एंड ये सारी चीज़ें मैं पहले से ही अचीव कर चुकी हूँ, या फिर ये सारी चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी है. आपको अपने आप पे बहुत ज़्यादा भरोसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आपके दिमाग में कहीं पे भी ऐसा चल रहा होगा ना कि ओके आई डोंट हैव टू डू दिस, मुझे ये नहीं करना चाहिए, या फिर ये वर्कआउट नहीं करेगा, या फिर कुछ भी ऐसा नेगेटिव थॉट जो भी आप उस चीज़ के बारे में सोचते हो, जब तक वो छोटा सा भी थॉट आपके दिमाग में होगा कि ओके मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, या फिर इसका इतना पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा, और टू हैव अ प्लान बी. प्लान बी इज़ समथिंग दैट यू शुड नेवर हैव इन द फर्स्ट प्लेस. लाइक सी, हम बहुत सारे लोगों के बारे में बात करेंगे कि उनको एक ही करियर में ऑब्वियसली उनको ऐसा लगता है कि नहीं हम सेटल नहीं हो सकते, बट जो भी है. बट अगर आप प्लान बी रखो ही नहीं और आप फुल प्रूफ प्लान के साथ चलो, तो आई एम डैम श्योर कि ओके आई वुड से कि शायद कुछ चीज़ें कुछ लोगों के लिए नहीं बनी होती है, एंड उसमें बहुत ज़्यादा वर्क करते वो जो है बहुत ज़्यादा ड्रेन कर देते हैं खुद को, एंड उसको उनको बाद में पता लगता है कि ओके दिस थिंग इज़ लिटरली नॉट फॉर मी. बट manifestation doesn't work this way. Okay, so I'm going to share some personal stories with all of you. So I know some of my friends who say like, जो ऐसे बातें करते हैं like bro I'm very serious for my I'm very serious for my career and all of this. You can literally tell by looking at my phone, मेरे फ़ोन का वॉलपेपर देखना, मेरे घर पे देखना, मेरे रूम में देखना, ये सब लगा होगा विजन बोर्ड एंड ये सब कुछ चीज़ें. आई वॉज वेरी पैशनेट. आई यूज्ड टू थिंक भाई बोर्ड लगाने से या वॉलपेपर लगाने से तुम पैशनेट कैसे हो गए, हाउ लाइक उससे उसका कोई लेना देना ही नहीं है. सी when I see people talk like this, like you can literally see how much motivated I am and how much of कितना ज़्यादा मैं सीरियस हूँ अपनी चीज़ों को लेके. I literally think of for them because like what, उससे कुछ भी नहीं हो रहा है. That is something you think for yourself. That is something okay sorry टूट जाता भाई, बुरा मान गए लगता सब लोग. सबको पता लग गया मैं किसकी बात कर रही हूँ. ओके सो अगर पता लग भी रहा है तो पता लगने दो. दिस इज़ समथिंग दैट्स वेरी वियर्ड. लाइक सी एवरीबडी इज़ लाइक, सब लोग अपने घर पे स्टिकर चिपका लेंगे किसी भी चीज़ का, आप अपने फ़ोन पे लगा लोगे, बट आप उसको देख भी लोगे. बट अगर आप उसको देख के इग्नोर कर दे रहे हो, अगर आप मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे हो, अगर आपको उसको देख के याद नहीं आ रहा है कि ओके मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, एंड देन उसके बाद आप उस चीज़ के लिए काम नहीं कर रहे हो, तो वो वॉलपेपर लगा के कोई मतलब ही नहीं है. देयर इज़ नो नीड टू हैव दोज थिंग्स इन योर लाइफ. लाइक लिटरली if I'm making this mood board and I'm not working for it and I don't have any plan to make these things to make it a reality, of course, then there is nothing to do with this thing. This is going to be like this only. अगर मैं इसको देखूँ भी रोज़ एंड अगर मैं इसके लिए काम नहीं कर रही हूँ एंड बस ऐसे ही लगा हुआ है, मैं इसको भूल रही हूँ, एंड देन फिर मैं चली जा रही हूँ सोने, या फिर मेरा रूटीन ही वैसा नहीं है, या फिर अगर मैं इतनी डिसिप्लिन ही नहीं हूँ, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ रही हूँ, या जो भी है मैं नहीं कर रही हूँ अपनी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें कभी होगी ही नहीं. आप कितने भी साल तक लगा के रख लो इस चीज़ को, ये चीज़ नहीं होगी जब तक आप डिसिप्लिन नहीं हो. सकते हो. आई यूज़ टू थिंक दैट ओके दैट्स वेरी वियर्ड, मुझे सुबह उठना ही क्यों है जब मुझे और कोई काम ही नहीं है. दैट इज़ समथिंग आई वॉज सो फूल. मुझे समझ में ही नहीं आता था
उस चीज़ के मायने, सुबह उठने के मायने मुझे जो अभी समझ में आ रहा है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ पार्ट ऑफ योर जर्नी. ऑफ कोर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू जल्दी उठना और सारी चीज़ें अपनी कंप्लीट करना. यू फील मोटिवेटेड. आप अपने दिमाग में सोचते रहते हो. अगर आप लेट उठते हो तो फिर ऐसा लगता है कि ओके मेरा तो दिन ही पूरा आदत चले गया, एंड देन उसके बाद अब मैं क्या करूँ. एंड वही जब आप जल्दी उठते हो एंड अपने आधे टास्क कंप्लीट कर लेते हो एंड आप बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करते हो, आप में एक बहुत अलग एनर्जी रहती है. और जब आप उस एनर्जी के साथ काम करते हो तो अपने माइंड में आप थोड़े से पॉजिटिव फील करते हो. तो अब जब वो पॉजिटिव फीलिंग के साथ कोई भी काम करते हो तो देयर आर चांसेस कि वो काम आपका अच्छा होता है. एंड और वही दूसरी तरफ अगर आप लेट उठते हो, लेट आप काम कर रहे हो, तो फिर आपके दिमाग में ना कैसे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो काम आपका बिगड़ सकता है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. पापा ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे, पॉडकास्ट नहीं सॉरी जो भी है, अगर ये देख रहे होंगे तो पापा को इस वक्त बहुत हंसी आ रही होगी कि लाइक लिटरली अब इसकी शादी हो गई, अब इसको समझ में आ रहा है ये सब चीज़ें. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, आई एम सॉरी पापा, आई एम सो सॉरी. ओके, सो it's my personal thing, nothing to do with all of you guys. It's literally that simple. You don't have to be like, it's not any rocket science. आपको कोई rocket science नहीं चाहिए manifestation के लिए. बस आपको इतनी चीज़ों का ध्यान रखना है एंड उसके बाद you are like totally unstoppable. Bye. भाई मेरा तो मुँह ही दुख गया इतना बोलते बोलते. मैंने इतने टाइम के बाद